Good morning. Today we are going to learn HTML. What is the full form of HTML? Tell me. Hyper Text Markup Language. Why we are going to use HTML? What is the purpose of HTML? Because when we want to create some web pages, we are going to use HTML. ठीक है? That HTML is a web page designing language. ठीक है? When we are going to design a web page, we use markup language HTML. ठीक है? तो what is the HTML? Now we are going to learn through Tata classes. ठीक है? We are going to start the video of HTML. Okay? Yes. We all use internet almost every day. We use internet for sending emails, ticket booking, searching for information, or for online shopping. Have you ever wondered how this information comes onto your computer screen? You know, all the times we are going to use internet in our mobile or our laptop. ठीक है? For shopping, banking, and all the things. तो HTML का यूज इन पेजेस को बनाने के लिए कैसे किया जाता है और इसका यूज करके हम कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं वो समझेंगे. तो फर्स्ट हम समझेंगे कि इन विच फील्ड्स HTML यूज होता है या वेब पेज का यूज होता है. उसके बाद हम उसको डिस्क्राइब करेंगे. ठीक है ना? ओके. Let us understand a few basic things. When multiple computer users are connected together, they can share data files among themselves. Together, it is known as a computer network. When multiple computer networks are connected together globally through a wide area network or WAN, it is then called as Internet or simply... You know the meaning of Internet? Yes. When many computers are connected through a network that called internet. So these computers are connected through a wire or Wi-Fi connection. ठीक है? In a, you know the fish को पकड़ने का जाल होता है ना, सेम वैसा ही पूरा नेटवर्क होता है इंटरनेट का. तो उसको यूज करने के लिए जब हम यूज करते हैं तो कैसे यूज करते हैं और उसमें कौन सी लैंग्वेज यूज होती है तो वो आगे हम समझते हैं. Net. Well, we can also say that Internet is a network of networks connecting billions of computer users from more than 190 countries across the globe. ठीक है? We use Internet to... How many countries are connected through Internet? 191, 200 भी बोल सकते हो ना. इतना कंट्रीज में ऑल ओवर वर्ल्ड कनेक्टेड है थ्रू इंटरनेट. अब एक्सेस करना इंफॉर्मेशन तो कैसे एक्सेस करते हैं वो आगे हम समझते हैं. ठीक? Share information, news, opinions, pictures. At present we are using these things: news, videos, photos. Platform, information systems are distributed. It is also called as World Wide Web or WWW or web in short. So you know the meaning of www? Yes. World Wide Web. We are using World Wide Web. World Wide में ना the waves all around world में फैली हुई उसको हम यूज कर रहे हैं. कहीं से भी हम कोई भी इंफॉर्मेशन को पुट अप कर रहे हैं और उसको एक्सेस कर रहे हैं. वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू हम उसको एक्सेस करके हमारे कंप्यूटर्स उसको देख रहे हैं. अब आप उसको देख रहे हैं तो वो बनती कैसे है, उसको ओपन कैसे करते हैं. आपका एक वर्ड, यू हैव अ वर्ड डॉक्यूमेंट. अब उस वर्ड डॉक्यूमेंट को आप अमेरिका में जाके ओपन करेंगे और वो हिंदी में बना हुआ है. इट्स पॉसिबल कि वो वहां ओपन होगा? क्या प्रॉब्लम आएगा? लैंग्वेज प्रॉब्लम. बिकॉज अमेरिकन्स डोंट नो द हिंदी लैंग्वेज. जैसे आप वहां ओपन करेंगे तो क्या आएगा? कोडिंग आएगा. सब आएगा ना. तो मार्कअप लैंग्वेज जब वेब पेज खोलते हैं तो उसमें ऐसा कोडिंग क्यों नहीं आता? वहां तो हम हिंदी में खोलेंगे, हिंदी में खुलेगा. लैंग्वेज चेंज करेंगे, लैंग्वेज चेंज हो जाता है. क्यों होता है? कि उसका लैंग्वेज अलग होता है जिसको हम HTML बोलते हैं, जिसको एक्सेस कर सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड. और उसका बोलते हैं ना कोडिंग कन्वर्ट नहीं होता या कोडिंग उसका डिस्टर्ब नहीं होता, उसको हम यूज करते हैं. दैट कॉल्ड HTML. ठीक है?
Information on the internet appears on different web pages. Web pages can be differentiated by their unique web-based address that is also known as the Uniform Resource Locator. You know the meaning of URL? URL, Uniform Resource Locator. When we have want to use some websites जैसे Google or some movie sites, first we are going to use the address bar and type the address of particular website. So when we are going to type the address, this address is called URL, Uniform Resource Locator. When we use this and click enter, the web page automatically open because we have the URL, address of particular website. So we just type the www.sales.com and then enter. The site will open and थिंग्स जो हमको चाहिए उसमें से हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, कैसे करते हैं चेक करो. Or URL. While accessing a web page, you can navigate from one link to other linked pages. ठीक है, in website it is possible to click one link to another link या going to one link and click them and going to another link. पॉसिबल है ना, एक लिंक से हम दूसरी लिंक पे जा सकते हैं क्योंकि एक लिंक के अंदर ही कई कंटेंट्स होते हैं जिसको हम फॉलो कर सकते हैं. जैसे सेल्स का वेबसाइट दिया हुआ है, रीड मोर लिखा है, हम इसको क्लिक करेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर जाकर और इन्फॉर्मेशन हम एक्सेस कर सकते हैं. तो इट इज पॉसिबल टू एक्सेस ऑल द इंफॉर्मेशन डिस्प्लेइंग इन दिस पेज, तो हम उसको यूज कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट. These links are known as hyperlinks. These links जिसको हम क्लिक करते हैं उसको बोलते हैं, these links are called hyperlinks because these links are connected to page. ठीक है, when we click the particular link will open and we access all the information that we have required. Okay. User can insert hyperlinks on text, images, video or graphics like buttons menu. Now the question is how a web page is displayed on an internet browser. Okay, now this is the question. How a web page display in the web browser? How can it possible that there is no problem, no code problem, everything is displayed in manner way? How can it possible? Now we are going to learn how can it possible to create a page or open a page in any web browser like Google, Firefox, Opera. These are the web explorer. वेबसाइट को एक्सप्लोर करने के एक्सप्लोरर. These are the explorer to open a website. A particular type of computer-based language known as Hypertext Markup Language or HTML describes how a web page should be displayed by a web browser. HTML is a documentation language to mark content of a web page like heading, titles, images, fonts and so on. ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज है HTML. ठीक है ना. कंटेंट्स क्या है, fonts color, fonts face, images, tags. These are the contents, images, titles, headings. These are the contents of markup language. इनको यूज करते हैं. How can it possible to use these all the text in our web page? What is the procedure to use these text? Next हम पढ़ते हैं उसको कैसे इसको यूज करते हैं. It is machine independent and all internet browsers accept the content written in HTML. Okay, HTML के जो कंटेंट्स हैं सभी ब्राउजर्स में ओपन होते हैं बिकॉज ये मार्कअप लैंग्वेज में बनी है. लैंग्वेज ऐसा है इसका कोडिंग डिस्टर्ब नहीं होता, इसलिए इसका यूज़ करते हैं ऑल वेब ब्राउजर्स में ओपन करने के लिए. तो जब भी हम कोई वेब पेज बनाएंगे या डिजाइन करेंगे, कोई पेज डिजाइन वर्ड में आप करते हो तो वर्ड में क्या करते हो, फॉन्ट चेंज किया, सब किया और कंप्लीट बनाया. आप उसको वर्ड की फाइल को 2007 में ओपन करेंगे तो ओपन नहीं होगा. कभी कभी ओपन होगा तो कोडिंग चेंज हो जाएगा या वर्ड्स डिस्टर्ब हो जाएंगे. मगर वेब पेज जो बनता मार्कअप लैंग्वेज में उसको कोडिंग डिस्टर्ब नहीं होता. क्या प्रोसीजर है कि डिस्टर्ब नहीं होता, क्यों उसमें हम यूज करते हैं वो समझते हैं. ठीक है. You must be thinking, how does HTML communicate with an internet browser?
Markup language has set of tags that describe how to present the web content. ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज या वेब पेज हैव सेट ऑफ टैग्स फॉर बॉर्डर्स BR, फॉर हेडिंग 1 H1 we are going to type a heading, dark and thick heading, we are going to use tag H1, smaller heading H2 or smaller heading H3. So these are the procedure to use the headings in markup language या डिजाइन a web page. ठीक है, कैसे डिजाइन करते हैं वो चेक करते हैं. HTML code uses various tags and describes the appearance of a web page. ठीक है, If you look at an HTML code, you can see that there is a difference between normal. नाउ हम समझते हैं व्हाट इज द HTML कोड. ठीक है, दिस इज अवर बॉडी. Our body have a face, head and face. We have a face. If we have no face, you know me, who am I? Because I have a face, so you know my name. ठीक है, तो दिस इज द हेड, फेस एंड दिस इज द बॉडी. तो इन HTML all these things are present. First we are going to use HTML. Why? We are going to create a web page. ठीक है, so we are going to use language. कौन सा लैंग्वेज यूज करेंगे? HTML. तो उसका टैग बनाते हैं स्मॉलर देन साइन, टैग का HTML देन ग्रेटर देन साइन. नाउ फर्स्ट स्टार्ट हमारा बॉडी होता, तो फर्स्ट क्या है हमारा? फेस से फर्स्ट क्या होगा? हेड. तो फर्स्ट क्या होगा? हेड स्टार्ट हुआ. ओके, हेड, देन आवर टाइटल, who am I, then title start, title name, tag and attributes and title end हुआ ना title. then हमारा body start, यहां से body start हुआ ना, then head close हुआ यहां तक. तो इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है? HTML लैंग्वेज, head start, head title, head close. ओके, नाउ बॉडी पार्ट्स. अब बॉडी पार्ट्स में क्या था? हैंड भी है, शर्ट्स भी है, अलग अलग कलर्स का शर्ट्स भी है जिसको हम यूज कर रहे हैं. तो यहां खत्म होने के बाद बॉडी का पार्ट्स यहां लिखा नहीं है, यहां से स्टार्ट होगा बॉडी. ओके, अब हेड को एंड किया है तो व्हाट इज द एंडिंग टैग? तो स्टार्ट HEAD एंड क्लोज, और एंडिंग टैग होता है स्मॉलर देन साइन, फॉरवर्ड स्लैश और हेड एंड देन ग्रेटर देन साइन. तो दिस इज द एंडिंग पॉइंट. नाउ बॉडी स्टार्ट हुआ यहां से, फर्स्ट है H4 मीनिंग हेडिंग टाइप नंबर 4, हेडिंग नंबर 4, फोर्थ स्टाइल की हेडिंग. H1 फर्स्ट हेडिंग, H2 सेकंड, H3 थर्ड एंड H4 माने स्मॉलर साइज हेडिंग. देन H4 हेडिंग में लिया हुआ B माने बोल्ड, इटैलिक के लिए I, अंडरलाइन के लिए U. दीज आर द टैग्स, दीज आर कॉल्ड टेक्स्ट. P अलाइन, राइट माने राइट में अलाइन करना. ये हम समझने के लिए अब हम यूज करते हैं, वी आर गोइंग टू यूज प्रेजेंटेशन. ये टैग्स क्या है तब आप उसको आगे समझोगे. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू यूज HTML का डिस्क्रिप्शन समझते हैं. ओके, व्हाट इज HTML? ओके, HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ओके, you all know na? Okay, second, HTML is the standard markup language for creating web page. HTML is a language for creating a web page. Okay, we are going to use the HTML programming. Then HTML describe the structure of a web page. HTML describe करती है कि what is the structure of your web page. Structure कैसा होगा, colors, fonts और स्टाइल्स कैसा होगा, इमेजेस क्या होगा. देन HTML कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ एलिमेंट्स. HTML जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो सीरीज ऑफ एलिमेंट्स बहुत से होते हैं. फोटोज भी होते हैं, बॉर्डर्स भी होती है, कलर्स भी होता है, बॉक्सेस भी होते हैं, बटन्स भी होता है. दीज आर द कंटेंट्स ऑफ अ वेब पेज. देन HTML elements tell the browser how to display the contents. HTML tells the browser how to display the contents of our page. HTML elements label piece of content, ठीक है, content such as this is a heading,
this is a paragraph, this is a link. These are the examples how we are going to create a web page. We will discuss next. Check here, HTML programming. This is the just description. We are going to create a website, so we have described the logo. Doc type, we are going to create a document. तो doc type HTML प्रोग्रामिंग हम क्रिएट करें, इसलिए हम उसका नाम लिख दिए. देन HTML स्टार्ट, ब्रेसेस, HTML स्टार्टेड. देन हेड स्टार्ट हुआ हमारा, फेस. अब HTML हेड के बाद क्या आएगा? व्हाट इज अवर टाइटल? तो टाइटल, पेज टाइटल. देन टाइटल क्लोज, फॉरवर्ड स्लैश टाइटल क्लोज. देन हेड क्लोज. बॉडी स्टार्ट, तो बॉडी स्टार्ट. हेड H1 हेडिंग, माई फर्स्ट हेडिंग एंड H1 क्लोज. तो दीज आर द स्मॉलर कंटेंट्स. वी आर गोइंग टू मेक अ वेब पेज बट वी हैव स्मॉलर आइटम. स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कर रहे हैं हम. क्या कर रहे हैं? छोटे छोटे पीसेस को ऐड कर रहे हैं. दीज आर द पीसेज. वी आर गोइंग टू ऐड पीसेज. देन P मीन्स पैराग्राफ. P मीन्स पैराग्राफ. ठीक है, तो माई फर्स्ट पैराग्राफ. देन बॉडी एंड HTML प्रोग्रामिंग एंड. ठीक है, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ HTML पेज? यू नो माई पेज नेम इज रूबी. तो व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ माई वेब पेज? Extension, you know the extension? Yes, sir. Extension, what is the extension? HTML. So ruby.html. This is the full. Okay, now we are going next slide. ठीक है, the doc type HTML declares and defines that this document is an HTML5 document. ओके, फर्स्ट हमने डिफाइन किया कि एक HTML डॉक्यूमेंट से. सेकंड, HTML एलिमेंट इज ए रूट एलिमेंट ऑफ एन HTML पेज. HTML पेज का ये एक रूट एलिमेंट है. यस, ओके. अच्छा, बच्चों का ना पीछे से आप गेट ओपन कर सकते हो, बच्चों को पीछे से बुला सकते हो. ओके, ठीक है. नेक्स्ट, द हेड एलिमेंट कंटेन मेटा इंफॉर्मेशन अबाउट द HTML. जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो फर्स्ट क्या होता है? हेड. तो हेड इज द मेन इंफॉर्मेशन ऑफ अवर पेज. आई एम मनोज, यू आर हर्ष. तो दिस इज अवर मेन टाइटल. ठीक है. देन द टाइटल एलिमेंट इज टाइटल ऑफ द HTML पेज विच इज शोन इन द ब्राउजर टाइटल बार और इन द पेज टैब. नेक्स्ट है द बॉडी. दिस इज द बॉडी पार्ट. The body element define the document's body and is considered for all the visual contents such as heading, paragraph, image, hyperlinks, tables, list. Because in our body parts we have hands, shoulders, chest. ठीक है, these are the elements of legs. These are the elements of our body parts. So we are going to use all the elements in our body parts. ठीक है. Now H1 elements, when H1 element define a large heading. What is the meaning of H1? H1 means heading is the large one. H1 means heading. This is the large one heading. And then P type define the paragraph. ठीक है, तो ये चीज दिया हुआ. Now we are going to make a smaller web page. ठीक है, to know how it will work. ठीक है, we are going to create a web page to use these elements or these text. ठीक है, चलिए हम बनाते हैं एक वेब पेज और चेक करते हैं कि जो हमने पढ़ा है उसमें वेब पेज में आता है कि नहीं आता. अब व्हाट इज द सॉफ्टवेयर वी आर गोइंग टू यूज फॉर क्रिएटिंग ए वेब साइट या वेब पेज? दिस इज अ कॉफी कप. ऑफ वी हैव नो कॉफी कप, तो वी आर गोइंग टू यूज नोटपैड. नोटपैड इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू यूज. नाउ वी आर गोइंग टू यूज अ नोटपैड टू क्रिएट ए सिंपल वेब पेज. ओके, check it. First we are going to use notepad. Where is notepad? In accessories and there is notepad. Okay, greater size करते हैं. आपको font इसका थोड़ा बढ़ाते हैं because आपको दिखना चाहिए पीछे. ठीक है, आपको जवाब भी देना क्वेश्चंस का. Now we are going to use a notepad for creating a
वेब साइट, ए सिंपल वेब पेज. तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? वी आर गोइंग टू यूज लेस देन साइन, HTML क्लोज. ठीक है, दिस इज अवर स्टार्टिंग. नेक्स्ट हेड, तो हेड. ओके, HEAD. ओके, ठीक है, हेड. देन टाइटल. व्हाट इज द टाइटल ऑफ अवर हेड? तो टाइटल. देन टाइटल, व्हाट इज द टाइटल? माई फर्स्ट पेज. एंड देन टाइटल एंड क्लोज किया टाइटल. ओके, टाइटल क्लोज. देन क्या स्टार्ट हुआ? हेड क्लोज. यहां तक हेड खत्म हुआ ना, तो हेड को क्लोज करेंगे. हुआ क्लोज हेड. देन बॉडी स्टार्ट. तो देन बॉडी, और बॉडी वी आर गोइंग टू यूज H1 हेडिंग. ओके, H1. ठीक है. देन माई हेडिंग देते हैं. ठीक है, दिया, हो गया. उसको क्या करेंगे? देन हेडिंग को स्टॉप करेंगे. H1 हो गया स्टॉप. एक और हेडिंग लिखते हैं आपको डिस्क्राइब करने के लिए, H2 और बनाते हैं, H2. ठीक है. देन क्या लिखेंगे? माई सेकेंड हेडिंग, सेकेंड हेडिंग. देन हेडिंग क्लोज स्लैश, या मिस्टेक को आपको बताना, मैं पीछे नहीं देख रहा हूं बेटा, है ना. देन उसके बाद क्या हुआ? हम इतना ही बनाते हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2, पैराग्राफ नहीं ले रहे हैं. नेक्स्ट बॉडी हमारा क्या हुआ? एंड. तो बॉडी क्लोज करेंगे तो क्या करेंगे? बॉडी क्लोज हुआ बॉडी क्लोज. एंड देन बॉडी के बाद क्या क्लोज होना चाहिए? HTML. यस, लास्ट HTML है, तो HTML क्लोज. तो दिस इज अवर फर्स्ट वेब पेज. अब हम इसको क्या करेंगे? सेव. तो फाइल, सेव एज. ठीक है, माई पेज लिखते हैं, माई पेज डॉट HTML. वर्ड में अगर नहीं लिखेंगे तो क्या करेगा? वो टेक्स्ट में आपका सेव कर देगा, तो वो रन नहीं होगा. इसको सेव करना है HTML में. इसको कहां सेव करते हैं हम? डेस्कटॉप पर. एंड देन सेव. ओके, अब हमको हमारा पेज यूज करना. वी आर गोइंग टू यूज अवर पेज दैट वी हैव क्रिएटेड जस्ट. ओके, चेक करते हैं. वेयर इज अवर वेब पेज. इसको भी मिनिमाइज करते हैं, इसको भी मिनिमाइज करते हैं. माई पेज, दिस इज माई पेज. इट विल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट द वेब ब्राउजर. गूगल ऑटोमेटिक सिलेक्ट किया ना उसने. क्यों? इट इज अ वेब पेज. हमने वेब पेज बनाया ना, उसने ऑटोमेटिक उसको सिलेक्ट कर लिया कि किस में ओपन करेगा वो. नाउ गोइंग टू ओपन इट. डबल क्लिक इट. हमने एक छोटा सा वेब पेज बनाया. ठीक है, हमारा वेब पेज का टाइटल क्या था? माई फर्स्ट पेज. वो सबसे ऊपर टॉप पे देखो, दिस इज द टाइटल, माई फर्स्ट पेज. हेडिंग 1 दिया तो क्या आया? फर्स्ट हेडिंग. एंड देन सेकंड हेडिंग साइज थिकनेस है, और एक हेडिंग स्मॉलर देन साइज में. समझ में आया? पेज बनाना, क्रिएट करना. ठीक है. व्हेन वी आर गोइंग टू यूज इमेज, तो इमेज का टैग होता है IMG. फॉर इमेज वी आर गोइंग टू यूज टैग IMG. IMG इक्वल एंड पाथ ऑफ अवर पिक्चर, C:/my document /ruby देन पिक्चर नेम. तो ये पाथ पूरा उसमें टाइप करना पड़ेगा. तो दिस इज द प्रोसीजर टू यूज अ इमेज. अब वी वांट टू यूज डिफरेंट टाइप ऑफ फॉन्ट्स. तो फॉन्ट्स का हेडिंग होता है फॉन्ट इक्वल ब्रैकेट्स में एरियल, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, देन स्पेस, साइज इक्वल 10, 20, 25, स्पेस, कलर ग्रीन, ब्लू, रेड. तो इसको हम यूज कर सकते हैं. यहां तक समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? चले हम दोबारा आगे बढ़े. यस. नाउ अब इसको हम रन करते हैं. क्या है? You can see that there is a difference between normal writing and HTML code.
You can see an HTML code contains letters or words within angular brackets. Okay, angular bracket. Words These or are called letters angular within brackets. Angular brackets are called tags. While writing an HTML code, if you open a tag, then closing the tag is always mandatory. Closing a tag should contain a / within the angular bracket.